Dear students, today we will see inverse Laplace transform. It is just opposite of Fourier Laplace transform. Now we derive formula for f of t in the case of Laplace. So before going that, we will see or take the help of Fourier transform. As we know that for given f of t, Fourier transform is f of omega, and f of omega is given as f of integration of minus infinite to plus infinite f of t e to the power minus j omega t dt, and f of t is equal to 1 upon 2 pi integration minus infinite to plus infinite f of omega e to the power j omega t d omega. Okay, now and already we know that what is Laplace transform? It is nothing but Fourier transform of f of t e to the power minus sigma t. So here we have written Fourier transform of f of t to the power minus sigma t, which is nothing but f of s, Laplace transform of f of t, okay, is equal to, and in place of f of t we will write f of t e to the power minus sigma t. You can see here, okay, e to the power minus j omega t dt. Now as in the case f omega is this one, f of t is this one, so in this case f of t power minus sigma t is equal to 1 upon 2 pi minus integration minus infinite to plus infinite f of s e to the power j omega t d omega. Okay, now in place of s, what is this? This is s sigma plus j omega, so 1 upon 2 pi f of sigma plus j omega to the power j omega t d omega. Now and we take to the right side e power minus sigma t. Then what is f of t? 1 upon 2 pi integration minus infinite to plus infinite f of sigma plus j omega e to the power sigma t e to the power j omega t. Here base is same, so we can add the power. We will get 1 upon 2 pi integration minus infinite to plus infinite f of sigma plus j omega e to the power sigma j omega t d omega. Now in place of sigma plus j omega we can write s, so sigma plus j omega is equal to s. Now we differentiate both sides, then we will get sigma is and we are differentiating with respect to omega, so sigma is constant, so it will differentiation will be the 0, and for differentiation of j omega is equal to j d omega ds है ना, राइट साइड s है तो इसका क्या हो जाएगा ds हो जाएगा, तो d ओमेगा क्या आ जाएगा यहाँ पे ds अपॉन j. सो इन दिस प्लेस वी कैन रिप्लेस इन, हम लोग यहाँ पे d ओमेगा की जगह पे क्या रिप्लेस कर सकते हैं ds बाई j से रिप्लेस कर सकते हैं. सो विल गेट f ऑफ t, हम यहाँ पे देखेंगे कि हम f ऑफ t इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई j है ना, जस्ट पुट इट द वैल्यू ऑफ ds एंड j इंटीग्रेशन सिग्मा माइनस j इनफाइनाइट to sigma plus j infinite f of s e to the power s t ds, and just you can see that, and just put the value of in place of omega, just value, put the value, okay, this one, okay, you will get sigma minus j omega. So this is the formula for finding out the inverse of Laplace transform, okay. But we don't generally use this formula because integration will be very complex. So instead of using this, we use the we can find out the inverse Laplace transform using the partial fraction. Okay, and this is called the Heaviside expansion theorem. Okay, so the Heaviside expansion theorem is an alternative to using partial fraction in solving differential equation using Laplace transform. Okay, now in Heaviside we can see that we divide into three parts. First is we have taken ak, and what is ak? If roots are not repeated, if roots are not repeated, for which Laplace transform जिसके लिए दिया हुआ है उसका रूट अगर रिपीटेड नहीं है, देन वी विल यूज दिस फार्मूला. इस फार्मूला में यूज करेंगे. जैसे मान ले आर के एक रूट है जो रिपीटेड नहीं है, तो एस माइनस आर के से मल्टीप्लाई कर देंगे और एफ एस है ना, एस माइनस आर के को एफ एस से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड लिमिट एस टेंस टू आर के कर देंगे. इससे हमें एक वैल्यू मिलेगा, दैट इज ए के. वी कैन आल्सो राइट ए बी सी और ए के. ओके, नाउ सेकंड, इफ रिपीटेड रूट्स है ना, रूट्स अगर रिपीटेड है तो उसमें से हाईएस्ट पावर जो होगा वो कैसे निकालेंगे, वो देख रहे हैं कि हाईएस्ट ऑर्डर जो है वो कैसे निकलेगा. जैसे मान ले कि हमें जो है एस माइनस 3 टू द पावर 3 है, तो 3 यहाँ पे पावर हाईएस्ट पावर 3 हो जाए, मतलब 3 है तो n इक्वल टू 3 हुआ ऑर्डर, इसको बोल सकते हैं. तो इस केस में हम लोग निकाल सकते हैं s माइनस आर पावर, मतलब r के जिस रूट के लिए ले रहे हैं
टू द पावर n मैक्सिमम वैल्यू अगर 3 है तो 3, 4 है तो 4, एफ ऑफ एस एस टेंस टू आर के. ओके, नाउ थर्ड ए के, हाउ वी फाइंड आउट द इन थर्ड केस वे रिपीटेड रूट तो रिपीटेड है, लेकिन उसमें से उसके मतलब ऑर्डर 2 का कैसे निकालेंगे. ओके ना, वो देख रहे हैं कि वो 2 का कैसे निकालेंगे. तो इन दिस केस में हम लोग क्या करते हैं, जो k है मतलब कितने बार रूट रिपीट कर रहा है, मतलब सेकेंड ऑर्डर के लिए निकाल रहे हैं, है ना. तो यहाँ पे 1/k-1 फैक्टोरियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू s ऑफ ऑर्डर k-1 एंड s माइनस आर के टू द पावर n एफ एस. ठीक है ना, लिमिट s टेंस टू आर के. मतलब जिस भी रूट के लिए आर के क्या है, नथिंग, जिस रूट के लिए हम निकालना चाहते हैं कि उसका जो कांस्टेंट जो वैल्यू है वो क्या आएगा. ठीक है ना, तो इस तरह से हम लोग इसका यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट द इनवर्स. तो पार्शियल फ्रैक्शन निकालेंगे और उसके बाद उसका इनवर्स निकालेंगे. फॉर एग्जांपल, फाइंड इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एस. एफ एस इज इक्वल टू एस प्लस 1 एस एस स्क्वायर प्लस 4s प्लस 4. ओके, दिस वन इज गिवन. नाउ सॉल्यूशन, इसका पार्शियल फ्रैक्शन करना है. इससे हम लोग देख सकते हैं कि s प्लस 1 यहाँ पे जो है s प्लस 2 का स्क्वायर है. तो यहाँ पे दो टाइप का जो है डिनोमिनेटर में है, एक तुम्हारा एक जो है मेरा अनरिपीटेड रूट्स है, एक रिपीटेड रूट्स है. तो अल्टीमेट यहाँ पे एक s के लिए यहाँ पे लिखेंगे a अपॉन s प्लस, अब यहाँ पे रिपीटेड रूट है तो एक s प्लस 2 के लिए और एक s प्लस 2 का होल स्क्वायर के लिए. इसके जो कांस्टेंट उसको c से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब इसको कोएफिशिएंट जिसको बोल सकते हैं. ठीक है ना. नाउ तब रिपीटेड रूट नहीं तो फर्स्ट मेथड से निकालेंगे. अगर रूट रिपीटेड है तो हाईएस्ट पावर को सेकंड मेथड से निकालेंगे. लेकिन अगर रूट रिपीटेड है तो अदर देन द फर्स्ट other than the highest order we will find out with the third method. So it is in first method, second method, third method, just to, है ना. हम लोग एग्जाम में ऐसा नहीं लिखेंगे, अब इसी बताने के लिए ऐसा लिखेंगे कि भाई वहाँ पे क्या हम लोग कहाँ से ये आ गया, किस तरह से कर रहे हैं. तो ए लिमिटेड रूट नहीं है तो इसमें क्या s के लिए निकाल रहे हैं ना, तो यहाँ क्या लिखा था, s माइनस आर के लिखा था ना वहाँ पे. यहाँ पे क्या लिखेंगे s, तो यहाँ पे कोई चूंकि यहाँ पे s माइनस 0 है ना, s माइनस 0 तो यहाँ 0 लेंगे तो s लिमिट s टेंस टू 0 कर देंगे. s से s यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा. नाउ पुट द वैल्यू s इक्वल टू 0, देन हियर वी विल गेट द 1 0 0 1 अपॉन 4, दैट मीन्स a इक्वल टू 4 1 अपॉन 4, दैट मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ 1 अपॉन s इज इक्वल टू 1 अपॉन 4. नाउ फॉर b मतलब क्या है तुम्हारा, b यहाँ पे है रिपीटेड रूट्स है लेकिन नॉट ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर के लिए निकालना है. तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, k का वैल्यू क्या हुआ, सेकंड ऑर्डर के लिए निकाल रहे हैं ना, तो यहाँ पे क्या आएगा 2 माइनस 1 आएगा ना, k इक्वल टू 2 माइनस 1 मतलब फर्स्ट ऑर्डर का निकाल रहे हैं. तो s 2 माइनस 1 यहाँ पे आ गया फैक्टोरियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू s 2 माइनस ऑफ ऑर्डर 2 माइनस 1. ठीक है ना, क्योंकि k माइनस 1 यहाँ पे था तो s प्लस 2 का होल स्क्वायर s प्लस 1 अपॉन s प्लस ये, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा. तो क्या हो जाएगा, सिर्फ s प्लस 1 का s इसका डिफरेंशिएशन बच जाएगा, लिमिट s टेंस टू माइनस 2, क्योंकि s प्लस 2 इज इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 2 है. दैट्स व्हाई वी हैव टेकन द लिमिट s टेंस टू माइनस 2. ठीक है ना. तो यहाँ पे अब क्या आया, लिमिट है ना 1 2 माइनस 1 1 का फैक्टोरियल क्या होता है 1 ही होता है. तो d अपॉन डी एस एस प्लस 1, तो s अपॉन इसको लिख सकते हैं 1 प्लस 1 अपॉन s लिख सकते हैं ना. तो इसका डिफरेंशिएशन 1 का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0 और 1 अपॉन s का डिफरेंशिएशन माइनस 1 अपॉन s स्क्वायर. व्हेन s टेंस टू 0 देन इट विल द, है ना, माइनस माइनस के स्क्वायर तो पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे माइनस s के कारण से माइनस 1 अपॉन 4 हो जाएगा. मतलब b का वैल्यू क्या आ जाएगा माइनस 1 अपॉन 4. नाउ सिमिलरली वी कैन फाइंड आउट द c के लिए क्या है, इट इज अ रिपीटेड रूट बट ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर. सो जस्ट द फॉर्मूला, रिमेंबर द फॉर्मूला s प्लस आर के होल स्क्वायर, मतलब पावर मैक्सिमम 2 है तो 2 लिखेंगे यहाँ पे 2 s प्लस 1 s इंटू एस प्लस 2 का होल स्क्वायर. तो इससे से कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या s प्लस 1 अपॉन s. सो अगेन वी आर फाइंडिंग आउट फॉर s फैक्टर s प्लस 2, सो इट्स रूट विल बी s इक्वल टू माइनस 2. सो वी विल टेक s टेंस टू माइनस 2. तो s का जब वैल्यू पुट करेंगे माइनस 2 प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस 1 डिवाइडेड बाई माइनस 2 विच इज इक्वल टू माइनस माइनस यहाँ पे आगे जब माइनस 1 अपॉन माइनस 2 आएगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 अपॉन 2. सो वी कैन राइट डाउन f ऑफ s एज 1 अपॉन 4s माइनस 1 अपॉन 4 s प्लस 2 प्लस 1 अपॉन 2 s प्लस 2 का होल स्क्वायर. नाउ आवर वर्क इज टू फाइंड आउट द इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म. जो क्या निकालना है, इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म. तो 3 टर्म है 1 अपॉन 4 अपॉन s माइनस 1 अपॉन 4 s प्लस 2. मीन्स 3 आंसर्स, मतलब 3 इसके अलग अलग इसके आएंगे. तो पहले इसका देखते हैं कि 1 अपॉन s का लैप्लास ट्रांसफॉर्म, इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है. या बोल सकते हैं कि यूटी का हम लोग पढ़े तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म 1 अपॉन s होता है, तो 1 अपॉन s का क्या होता है
लेकिन हम याद रखो हम लोग दो चीज में हम लोग देखे थे, ut का लैप्लास ट्रांसफॉर्म भी 1/s होता है और माइनस u ऑफ माइनस टी का भी लैप्लास ट्रांसफॉर्म 1/s होता है। तो जब यहाँ पे जब हमको रिवर्स करेंगे 1/s तो y भी टेक 1/ सिर्फ ut ले सकते हैं हम लोग, u ऑफ माइनस टी भी तो ले सकते हैं ना। तो डिपेंड्स अपॉन द ROC पे डिपेंड करता है, सब जो गेम है वो ROC का गेम है, ठीक है ना। तो 1/4/s के लिए हम लोग जो इसका इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म होगा 1/4 ut, ये कब होगा जब सिग्मा ग्रेटर देन 0, मतलब राइट साइडेड सिग्नल, एंड इस लेफ्ट साइडेड सिग्नल माइनस 1/4 u ऑफ माइनस टी, दैट मीन सिग्मा लेस देन 0। ओके, सिमिलरली फॉर माइनस 1/4s प्लस 2 के लिए क्या होगा, इसका भी 2 आएगा, एक राइट साइडेड के लिए आएगा, लेफ्ट साइडेड के लिए आएगा। तो जब यहाँ पे माइनस रहता है तो यहाँ पे जब माइनस ही रह जाएगा 1/4 माइनस 2t ut सिग्मा ग्रेटर माइनस 2 के लिए, बट लेस देन में तुम्हें पता होगा कि माइनस है ना, माइनस u ऑफ माइनस टी का फॉर्मूला 1/s प्लस 2 होता है। तो चूंकि यहाँ पे माइनस ऑलरेडी है तो मुझे यहाँ पे माइनस लेने का सकता नहीं, तो 1/4 पर माइनस 2t पर माइनस टी है ना। जस्ट थिंक दैट व्हाट इज द लैप्लास इन, उल्टा सोचो, जो वहाँ पे हम लोग करते जस्ट उसका अपोजिट सोचेंगे, ठीक है ना। तो एक हो जाता है राइट साइडेड के लिए, एक होता है लेफ्ट साइडेड के लिए। सिमिलरली इन दिस केस ऑल्सो 1/2t et पर माइनस 2t ut सिग्मा ग्रेटर माइनस 2, एंड फॉर द एक लेफ्ट साइडेड के लिए माइनस 1/2t e पर माइनस 2t u ऑफ माइनस टी, क्योंकि यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस होगा, यहाँ माइनस होने पे यहाँ प्लस होता है, ठीक है ना। ओके, हियर वी कैन सी दैट द टू डिफरेंट पोल है ना, आप देख सकते हैं कि दो पोल आ रहा है, एक 0 है पोल और एक तुम्हारा क्या है माइनस 2 है, दो पोल है ना। तो जब दो पोल होते हैं तो उसके 3 RO से डिफाइन होता है ना, 3 डिफाइन होगा, ठीक है ना। यू कैन सी ठीक है ना। तो देखो हम लोग इस केस में क्या माने हैं, हम लोग इसके कारण से देखो क्या होगा, जैसे 0 माइनस 2 है तो इसके 4 कॉम्बिनेशन हो सकते हैं कि भाई एक जो आंसर हो सकता है वो 0 से मतलब बड़ा हो, माइनस 2 से बड़ा हो, एक तुम्हारा जो हो जाएगा 0 से बड़ा हो माइनस 2 से छोटा हो, एक हो जाएगा माइनस 2 से बड़ा हो 0 से छोटा हो, एक दोनों 0 से छोटा हो माइनस 2 से छोटा, 4 कॉम्बिनेशन बनेगा। तो देखो ये जो है इसमें क्या लिखे हैं, इसमें सिग्मा ग्रेटर 0 मतलब जो ut वाला है इससे जहाँ सिग्मा ग्रेटर मतलब कि ये तुम्हारा ROC किसका है, ut का है। तो ये तुम्हारा जब सिग्मा ग्रेटर तो ये फॉर्मूला लेंगे, ठीक है ना, जो ऑलरेडी पहले देख चुके हैं। ऐसे ही तुम्हारा सिग्मा राइट साइडेड सिग्नल के लिए, तो राइट साइडेड क्या लिखे थे हम लोग, है ना, राइट साइडेड के लिए हम लोग देखें ऊपर में देख सकते हो कि हम लोग ऑलरेडी लिख चुके हैं राइट साइडेड के लिए, है ना। राइट साइडेड के लिए क्या लिखे थे, यही फॉर्मूला लिखे थे ना राइट साइडेड के लिए, तो इसका ले लेंगे यूज, राइट साइड वाला राइट साइड का यूज करेंगे, लेफ्ट साइड में लेफ्ट साइड वाला यूज करेंगे। इसमें जो राइट साइड है तो राइट साइड का यूज कर रहे हैं माइनस 2 ग्रेटर माइनस 2 के लिए, ठीक है। नाउ फॉर सिग्मा ग्रेटर 0 एंड सिग्मा माइनस 2 इसका एक कॉमन ROC क्या होगा, राइट साइड सिग्नल है तो बोलते हैं राइट मोस्ट सिग्नल, तो सिग्मा ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। सिमिलरली इन दिस केस है ना, ये एक देखो सिग्मा ग्रेटर देन 0 है तो इसमें राइट साइडेड का लिए, सिग्मा लेस देन माइनस 2 है तो इसमें तुम्हारा क्या हुआ, हम लोग लेफ्ट साइडेड वाला लिए आंसर लिए, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे क्रॉस किया हुआ है, क्रॉस क्यों किया हुआ है, उसका कोई कॉमन एरिया नहीं है, मतलब दी जो हम जो लिखे हैं वो गलत है, मतलब ये इसका इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म नहीं होगा। सिमिलरली फॉर दिस वन सिग्मा ग्रेटर माइनस 2 राइट साइडेड, सिग्मा लेस देन 0 लेफ्ट साइडेड, तो हियर वी हैव टेकन द लेफ्ट साइडेड है, ये सब लिए हैं राइट साइडेड के लिए हैं, तो इसका ROC डिफाइन है माइनस 2 से बड़ा और 0 से छोटा। ऐसा ये भी इसमें लिखे हैं सिग्मा लेस देन 0 मतलब लेफ्ट साइडेड है, ये तुम्हारा क्या राइट साइडेड है, ये भी कॉमन रीजन है तो इसका भी है। तो दैट मीन्स हम देखें कि तुम्हारे पास अगर 2 पोल है तो 3 डिफाइंड इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म होगा, ठीक है ना, और एक जो होगा इनवैलिड होगा। ओके, तो द नंबर ऑफ पॉसिबल ROC फॉर गिवन लैप्लास ट्रांसफॉर्म इज इक्वल टू नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट पोल प्लस 1 इफ ऑल पोल्स आर रियल। समझ में आया ना, कोई एनी डाउट, ऑल क्लियर है ना। ये बता रहा है कि अगर तुम्हारे पास 2 पोल है तो जो डिस्टिंक्ट पोल है ना, ऐसा नहीं कि -2 रिपीटेड है, ठीक है। जब 2 डिस्टिंक्ट रूट होगा तो देयर आर 3 2 + 1 देयर आर 3 रीजन ऑफ कन्वर्जेंस ROC। Okay, thank you so much. Okay, next we will see the next lecture we will see initial value theorem and final value theorem. Okay, and this will end the Laplace transform. Okay, thank you.